Hello everyone, we are doing exercise 13.1. Okay, question number 1. Two cubes, each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. First of all, we will solve this question with 3-point formula. What is given? We will understand first of all, first point, that what is given in the question. ओके इसमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दो क्यूब दिए हैं जिसका वॉल्यूम जो है दैट इज 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमें सरफेस एरिया भी हाउ टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। नाउ अभी देखो वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट लेंथ विड्थ और हाइट तीनों सेम रहता है क्यूब का। तो a cube equals to 64. What is the volume of cube? Volume of cube equals to a cube, and it is given that a cube equals to 64. So we can find out the value of a. A का वैल्यू क्या जाएगा? 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64. So a की वैल्यू आ गई 4. Now अभी दूसरा जो क्यूब है, let us assume that dice. If two dice are attached to each other, okay, तो इसमें अभी what will be the length, total length of the cuboid? 4 plus 4 it will become 8. For a cuboid length will be 8 centimeter, and what will be the width? That will be 4 centimeter, and what will be the height? That height will remain the same, that is 4 centimeter. So for this cuboid, surface area of a cuboid will be what will be the surface area of the cuboid? Length into breadth 8 into 4, length into width, this face and opposite face. Okay, so this is 2 times plus 4 into 4, top surface and means side face, one of the side face and other side face, so it is 4 into 4, correct. Now what is the top face and bottom face? Top face and bottom face will be, height will be 4 into 8, so when you calculate it, it comes out to 160 centimeter square. Okay, now let's move on for second question. See, in second question, a vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. देखो इसमें हमें दिया क्या हुआ है, एक वेसल है जिसमें कि a vessel is in the form of a hollow hemisphere. अभी एक वेसल हमारा बन रहा है, नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज योर हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है, और वो बता क्या रहा है यहाँ पे कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर मींस द डायमीटर इज 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, और वो बोल रहा है कि हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर मींस टोटल हाइट ऑफ द वेसल दे रखा है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है वेसल का। देखो अभी इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर और प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अभी इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, दैट इज योर 2 पाई RH, करेक्ट। इनर सरफेस एरिया मींस द पेरीमीटर आप बोल सकते हैं कि अगर हमने एक साइड से कट कर दिया तो जो कट होने के बाद में जो ओपन होगा दैट विल बी योर रेक्टेंगुलर फेस, करेक्ट। तो रेक्टेंगुलर फेस में तुम्हारा क्या होगा, व्हाट विल बी योर 2 पाई R, दिस इज योर पेरीमीटर और हाइट कितना, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इंटरनल, दैट विल बी योर हाइट इनटू पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 पाई RH। नाउ व्हाट विल बी द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अभी देखो सर्कल जो है दैट इज पाई R स्क्वायर, हेमिस्फीयर दे रखा है, हेमिस्फीयर इज 2 पाई R स्क्वायर, इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हम क्या करेंगे, R और H की वैल्यू पुट करेंगे,
What is the value of pi 22/7? What is the value of radius? Radius is 7 centimeter given in the question. Now, what is the height? If my total height is 13 centimeter, तो मेरी total height 13 centimeter है, तो what will be the height of the cylinder? हम क्या करेंगे, इस टोटल हाइट में से हम हेमिस्फीयर की हाइट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, हाइट ऑफ अ सिलेंडर. तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर. फिर 2 pi r square. What is the radius of the hemisphere? One and the same thing. R is nothing but 7. So that is 2 into 22/7 into r square, that is 7 square. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, it comes out to 572 centimeter square. Okay, ये हो गया. Now move on to the third question. What is my third question? Third question is a toy in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Okay, find the total surface area of the toy. अभी देखो, you have seen lattu. Okay, so a toy in the form of a cone of radius 3.5 centimeter. So यहाँ पे एक कोन दे रखा है जिसका रेडियस जो है, दैट इज कोन का जो रेडियस है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर है. ओके, अभी एक हेमिस्फीयर उल्टा करके, हेमिस्फीयर के ऊपर उल्टा कोन करके हमने प्लेस कर रख दिया उसके ऊपर. तो क्या हो गया, अभी टोटल हाइट दे रखी है कितनी हमें, 15.5 सेंटीमीटर. तो जिससे मेरे को कोन की हाइट मिल जाएगी, क्योंकि हमें रेडियस ऑलरेडी पता है हेमिस्फीयर का कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, जिससे मुझे कोन की हाइट मिल गई. नाउ दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. व्हाट इज द स्लैंट हाइट? स्लैंट हाइट होता क्या है? स्लैंट हाइट इज नथिंग बट दिस वन. करेक्ट, दिस इज माई स्लैंट हाइट. सो स्लैंट हाइट विल बी इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो व्हाट विल बी द स्लैंट हाइट और हाइपोटेनस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम. तो जिससे मेरी स्लैंट हाइट आ जाएगी L इक्वल्स टू व्हाट, H क्या दे रखा है यहाँ पे 12, और व्हाट इज R? R इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, जिससे हमारा स्लैंट हाइट आ गया मेरा 12.5 सेंटीमीटर. What will be the surface area? वो क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो मुझे टॉय का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहली बात, मैं सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालूंगा, दूसरा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालूंगा, और मैं उन दोनों को एडिशन कर दूंगा. और इसमें मुझे पता है ऑलरेडी कि सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल. करेक्ट, वेयर एल इज योर स्लैंट हाइट. करेक्ट, क्यों? क्योंकि वो कोन का सरफेस एरिया क्या रहेगा, स्लैंट हाइट के हिसाब से हम चारों तरफ से, मतलब इफ आई एम रोटेटिंग इट in a circle, a line in a 360 degree or at a perimeter of a circle, then it will become the total surface area of a cone. ठीक है, और हेमिस्फीयर का क्या होगा, 2 pi r square. तो pi r l is the surface area of cone and 2 pi r square is the surface area of hemisphere. अभी r की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, that is given in the question is 3.5 centimeter. Now what is the slant height? Slant height आपने अभी फाइंड आउट किया है, that is 12.5 centimeter. ठीक है, हम वैल्यू का हम इसमें पुट करेंगे, तो that is total surface area will be equal to 214.5 centimeter square. चूंकि surface area है, that's the reason I have write down here centimeter square. All dimensions are in centimeter. Now question number 4. See, what they are asking is a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere each can have? Find the surface area of the solid. अभी हमें ऑलरेडी पता है
अगर एक क्यूबॉइड दे रखा है और उसका अगर वो पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा हेमिस्फीयर का, तो दैट विल बी द साइड ऑफ अ क्यूब। करेक्ट। एक क्यूब दे रखा है, क्यूबिकल दे रखा है, क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है, तो साइड ऑफ द क्यूब विल बी योर हाईएस्ट डायमीटर ऑफ द स्फीयर। सो साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू नथिंग बट 7 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अभी सरफेस एरिया अगर मुझे निकालना है सॉलिड का, तो मुझे करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या क्या रखेगा, मुझे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब चाहिए फर्स्ट थिंग। सेकंड, आई रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी ऑलरेडी मुझे पता है क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है। सी इन क्यूब हर साइड का जो लेंथ है वो a है, तो दैट इज 6a स्क्वायर। एक सरफेस एक साइड का एरिया होगा a स्क्वायर, a इंटू a। और ऐसे कितने साइड्स है, ऐसे कितने फेसेस है, 6। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ डाइस। करेक्ट। तो जिससे मेरा 6a स्क्वायर आ गया और सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर माइनस सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कल होगा। क्यों? दैट सर्कल विल आल्सो गेट सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि हम ये दोनों चीजें कहाँ पे ले रहे हैं, हमने क्यूब में भी वो सरफेस एरिया में भी हमने इंक्लूड कर लिया, और साथ में हमने जब हम हेमिस्फीयर का एरिया निकाल रहे हैं उसमें भी वो सर्कल का 2 बार हमने सर्कल का एरिया निकाल लिया। तो जिसके कारण हम क्या करेंगे, उसमें से एक सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। करेक्ट। While taking out hemisphere surface area, we have included circle surface area. Okay, फेस के ऊपर का जो सरफेस एरिया था सर्कल का, वो भी इंक्लूडेड है हेमिस्फीयर में, और साथ में जब हमने क्यूब का सरफेस एरिया निकाला तो वन फेस के ऊपर जो सरफेस एरिया था उसमें भी वो सर्कल इंक्लूडेड था। तो मतलब एक ही चीज हमने 2 बार काउंट कर ली है, जिसके कारण हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस किया सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, 6a स्क्वायर। और व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, 2πr स्क्वायर। करेक्ट। माइनस πr स्क्वायर, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कल। हम इसमें एक ही जगह 7 पुट करेंगे, क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट क्यूब इज ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। नाउ 2πr स्क्वायर, r की वैल्यू हम पुट करेंगे। व्हाट इज द रेडियस, रेडियस विल बी डायमीटर हाफ ऑफ द डायमीटर, और साइड की लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो जिससे मेरा रेडियस क्या आ जाएगा, दैट विल बी द साइड विल बी बिकम द डायमीटर। तो मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, 7/2। ठीक है। आई विल पुट द वैल्यू ऑफ 7/2 इन प्लेस ऑफ r स्क्वायर, और आई विल पुट डाउन वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 7/2। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो इट कम्स आउट टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। नाउ move on to question number 5. See, in this question number 5, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block, okay, such that the diameter of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ठीक है। तो अभी वो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ऑलरेडी हमें पता है कि हमने कट आउट निकाला है, किसमें से, एक फेस एक क्यूब है, वुडन ब्लॉक का क्यूब है, उसमें से हमें एक सरफेस में से हेमिस्फेरिकली डिप्रेशन, मतलब कि उसको जैसे हम आइसक्रीम निकालते हैं जनरली, इफ़ यू सॉ दैट अमूल आइसक्रीम पार्लर में वो जाते हैं तो जनरली वो एक चमचे से, एक पर्टिकुलर टूल से वो आइसक्रीम निकालता है, तो वो एक हेमिस्फेरिकल या फिर स्फेरिकल फॉर्मेट में आता है हमारे पास में। ठीक है। तो अगर हेमिस्फेरिकल फॉर्मेट में आ रहा है तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक क्यूब में से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, मतलब एक कटआउट निकाल रहे हैं एक फेस का। ठीक है। दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। जो क्यूब का एज है दैट विल बी योर डायमीटर गिवन इन द क्वेश्चन। ओके। डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो हमें पूछा क्या है कि बाकी का जो रिमेनिंग एरिया है क्यूब का, वो हमें पता करना है। तो अभी ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। ठीक है। जो बचा हुआ सॉलिड है, ठीक है, वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस
सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, करेक्ट, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल भी तो आएगा आपका, क्योंकि चूंकि आप निकाल रहे हो हेमिस्फेरिकल, तो वो जो ऊपर का एरिया है, एरिया ऑफ अ सर्कल, वो भी तो कट आउट होगा। जो फेस का जो एक फेस है उसका भी तो, उसमें भी तो कट आउट होगा सर्कल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी 6a स्क्वायर, एरिया ऑफ वन सरफेस इज a स्क्वायर, ऐसे 6 फेसेस है तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। नाउ व्हाट विल द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज 2πr स्क्वायर, दैट वी नो वेरी वेल। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ अपर फेस, जहां से हमने कट आउट निकाला है, तो जो तुम्हारा सरफेस वहां पे है, तो वो सरफेस का जो सर्कुलर एरिया है, सरफेस का जो हमने क्यूबॉइड में कंसीडर करके रखा हुआ है, तो वो भी तो सब्ट्रैक्ट होगा वो, क्योंकि हम ये 2 बार काउंट करेंगे ना, क्योंकि हम वो फेस को हमने ऑलरेडी काउंट किया है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में, तो हमको वो भी तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही फेस पे से वो सर्कल का एरिया कट आउट होगा। तो व्हाट विल बी द रिजल्टिंग सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड, 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका आ जाएगा, एक ही जगह आपको क्या दे रखा है, साइड ऑफ क्यूब इज l, और डायमीटर क्या दे रखा है, r इक्वल टू l/2, r की जगह l/2 पुट कर देंगे। हमने इसमें से दोनों टर्म में से 2πr स्क्वायर माइनस r स्क्वायर में πr स्क्वायर में से हमने πr स्क्वायर निकाल लिया, तो हमारा बच्चा क्या यहाँ पे अभी हमारा l स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, तो 6 प्लस π/4, तो आंसर आ जाएगा 24 प्लस पाई, ठीक है। दैट विल बी योर आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखो, a medicine capsule is in the shape of a cylindrical cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end, ठीक है, to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area, ठीक है। Now यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि कैप्सूल हमें दे रखा है, मेडिसिन कैप्सूल दे रखा है, उसमें शेप जो है उसका सिलेंडर का है, कैप्सूल का हमने कैप्सूल देख रखा है। कैप्सूल का शेप किस टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल इन द मिडिल, लेकिन एट द एंड ऑफ द कैप्सूल्स क्या होता है जनरली, दैट इज हेमिस्फेरिकल और दैट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, वो वहाँ पे कुछ पोर्शन ऑफ मेडिसिन रहती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे उसने बोला है कि इसका जो डायमीटर है दैट इज 5 mm। नाउ टोटल लेंथ इज गिवन हियर इज 14 mm। तो हमें करना क्या है, फाइंड इट सरफेस एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिलेंडर का हाइट निकालेंगे। सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा, अगर मुझे कैलकुलेट करना है सिलेंडर का हाइट, तो टोटल हाइट में से मैं अगर इसकी विड्थ, इसका हाइट, हेमिस्फीयर का हाइट, बोथ साइड्स का, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा सिलेंडर का हाइट, करेक्ट। सो व्हाट विल बी द सिलेंड्रिकल हाइट ऑफ अ सिलेंडर, दैट इज टोटल लेंथ इज 14 माइनस 5/2 radius of the one side of the cylinder and second side is 5/2, तो 14 minus 5 will become 9 millimeter। तो मेरा 9 millimeter का मेरा हाइट आ गया सिलेंडर का। नाउ सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम बोथ एंड, तो ये एक है और ये 2 एंड है सिलेंडर के, तो सरफेस एरिया कितने हो जाएंगे हेमिस्फीयर के, 2, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πRh। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2πr स्क्वायर। ये 2 जो है 2 हेमिस्फीयर के लिए हमने लिखा है वहाँ पे 2 नंबर्स ऑफ क्वांटिटी गिवन इन द क्वेश्चन। तो अभी हम r की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 5/2 गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, राइट नाउ वी हैव टेकन आउट 9 mm, वी विल पुट इट 9। हम इसमें r की वैल्यू पुट करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू 220 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ
टोटल कैप्सूल, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 7। A tent is in the shape of a cylindrical surmounted by a conical top, ठीक है। अभी देखो एक टेंट बनाया है उन्होंने, उसमें वो बता रहे हैं कि जो शेप है उसका वो एक सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड है, मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप का बॉटम से लेके एक पर्टिकुलर हाइट तक के 2.1 तक के 2.1 मीटर तक के सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन एट द टॉप वो कोनिकल हो जाता है, ठीक है। तो अभी जब यहाँ पे 2.1 मीटर दे रखा है, ठीक है ना, हाइट दे रखा है 2.5 और डायमीटर दे रखा है 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया कि ये जो डायमीटर है ये मेरा कितना है 4 मीटर, ये भी मेरा 4 मीटर है, करेक्ट ना। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, ये मेरा स्लैंट हाइट कितनी है 2.8 मीटर है ये, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, मतलब हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है किसका, टेंट का। तो सरफेस एरिया ऑफ द टेंट विल बी सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालो और सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालो, इन दोनों को एडिशन कर दो तो दैट विल बी योर सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अभी जब सरफेस एरिया निकालोगे तो रेट कितना है 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मीटर मतलब 500 रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट you have find out from taking curved surface area of a cone plus curved surface area of the area of a cylinder, इन दोनों का एडिशन करने के बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा उसके लिए कितना होगा, तो दैट पर्टिकुलर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 500, दैट विल बी योर आंसर। दैट इज माय सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट फार्मूला का सेकंड पॉइंट है, मतलब आई शुड हैव अ रेडी। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आई शुड मेक वन ब्लूप्रिंट इन माय माइंड हाउ आई हैव टू सॉल्व इट इन I have to solve this question, okay। And third point is implementation stage. In implementation stage, whatever you have think or whatever the blueprint you have drawn in your mind, that should be implemented in perfect manner, okay। तो अभी देखते हैं, स्लैंट हाइट दे रखा है 2.8 मीटर, डायमीटर दे रखा है मेरा 4, जिससे मेरा आर आ गया 2 मीटर, हाइट दे रखी है 2. तो सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर